Write T for true or F for false. First one is the Bhakra Dam has been built across river Ganga. The Bhakra Dam has been built across river Ganga. Is it true? No, it's false. So we have to write here F. The second one is the Humayun's tomb is in Delhi. Yes, the Humayun's tomb is in Delhi. So you have to write here T for true. Then third one is the beaches of Goa are very famous. गोवा के जो बीचेस है वो बहुत फेमस है. It's true. So you have to write here T. Then fourth one is Pongal is the main festival of Tamil Nadu. Tamil Nadu का main festival पोंगल है. Yes. So you have to write here true. Mohiniyattam is the classical dance of Andhra Pradesh. Fifth question क्या है? Mohiniyattam is the classical dance of Andhra Pradesh. Is it right? No, it's false. So you have to write here F. Question B. Write one word answer for each. एक सिंगल वर्ड लिखना है इस सेंटेंस के लिए. फर्स्ट वन क्या है? फाइन सिल्क डिपॉजिटेड बाय रिवर्स अलोंग इट्स बैंक. फाइन सिल्क यानी कि फाइन ऐसे सैंड अपने साथ जो नदियाँ लेकर आती हैं उसे क्या कहते हैं? एल्यूविया. सेकेंड वन इज द ब्रांच ऑफ रिवर गंगा दैट फ्लोज इन बांग्लादेश. द ब्रांच ऑफ रिवर गंगा दैट फ्लोज इन बांग्लादेश. द आंसर इज पद्मा. देन थर्ड वन इज द स्टेट फेमस फॉर सत्तू पराठा. सत्तू पराठा कौन से स्टेट में फेमस है? द आंसर इज बिहार. फोर्थ वन इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन faces this sea. The western coastal plains faces this sea. The answer is Arabian Sea. And the fifth one is a popular festival of Kerala. A popular festival of Kerala is Onam. So you have to write here Onam. Question C. Answer these questions. First one. How do the rivers of the northern plains make the land fertile? How do the rivers of the northern plains make the land fertile? The answer is the river which flow through the northern plains have their origins in the Himalayas. They carry with them broken pieces of rocks, sand and silt. They deposit this fine silt called alluvium along the banks which makes the land fertile. The river which flow through the northern plains have their origin in the Himalayas. हिमालय में से जो रिवर्स बहती हैं वो अपने साथ क्या क्या लेकर बहती हैं? जैसे कि ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट. और ये जो सिल्ट है, फाइन सिल्ट होता है जिसे कि एल्यूवियम बोलते हैं, वो एक तरह का फर्टाइल होता है जिससे कि ये जो लैंड है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है. देन क्वेश्चन सेकेंड. राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मॉन्यूमेंट्स दैट यू वुड लाइक टू विजिट इन दिल्ली. राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मॉन्यूमेंट्स दैट यू वुड लाइक टू विजिट इन दिल्ली. दिल्ली में आप कौन सी मॉन्यूमेंट को विजिट करना चाहोगे? Answer is Red Fort, Qutub Minar, India Gate, Humayun's tomb, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल. इनमें से कोई भी आप 4 लिख सकते हो. थर्ड वन इज into how many parts is the western coastal plains divided? Write their names. How many parts is the western coastal plains divided? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कितने पार्ट में बटा हुआ है, कितने हिस्सों में है? द आंसर इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दे आर द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मलबार कोस्ट. 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड द मलबार कोस्ट. एंड
Fourth question is, what are the main occupations of the people living in coastal areas? The answer is fishing and the farming are the main occupations of the people living in coastal areas. कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशंस है वो है फार्मिंग एंड फिशिंग. द फिफ्थ क्वेश्चन इज, राइट द नेम्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन केरला. केरला में लिए जाने वाले कौन कौन से क्रॉप्स हैं, आप उनके नाम लिखिए. द आंसर इज, द क्रॉप्स ग्रोन इन केरला आर राइस, कोकोनट, rubber, tea, coffee and spices. The crops grown in Kerala are rice, coconut, rubber, tea, coffee and spices. Question D. Think and answer. Why is salt making restricted to the coastal areas? Question क्या है? Why is salt making restricted to the coastal area? Coastal area में ही salt making क्यों होती है? The answer is, sea water is an important source of salt. Sea water is an important source of salt. Sea water is collected in salt pans along the coast. When the sea water evaporates from the salt pans, salt is left behind. Thus, salt making is restricted to the coastal areas. Salt बनाने के लिए सी वाटर ज़रूरी है और ये सी वाटर जो इवेपोरेट होता है तो उससे पीछे क्या बच जाता है? सॉल्ट, मतलब सॉल्ट बन जाता है उससे. अगर सी वाटर ही नहीं है तो सॉल्ट नहीं बन सकता है. इसकी वजह से ये जो सॉल्ट मेकिंग है वो कोस्टल एरिया में ही बनता है. Then do and done. Question E. Activity. Fill in this table. अब इस टेबल में हमें क्या करना है? यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं. उस स्टेट में जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसके नाम यहाँ लिखने हैं. उस स्टेट में कौन सा डांस फेमस है वो भी लिखना है. देन उस स्टेट में लैंग्वेज मेनली कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है वो लिखनी है और उस स्टेट के सिटी के नाम लिखने हैं. ओके, तो स्टेट दिया है केरला एंड द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला इज ओनम एंड विशु. देन डांस कथकली एंड मोहिनीअट्टम. इन केरला कथकली एंड मोहिनीअट्टम आर द फोक डांस. देन मेन लैंग्वेजेस मलयालम. मलयालम लैंग्वेज जो है वो केरला में मोस्टली बोली जाती है. देन सिटी तिरुवनंतपुरम. देन सेकेंड स्टेट इज तमिलनाडु और तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. वहाँ पर डांस फॉर्म जो है भरतनाट्यम, ज़्यादातर वहाँ पर भरतनाट्यम होता है. देन मेन लैंग्वेज वहाँ की है तमिलनाडु और सिटी है चेन्नई. मेन लैंग्वेज है तमिल एंड सिटी चेन्नई. देन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहाँ का फेस्टिवल, फेमस जो फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा. देन डांस है गौरिया नृत्य और वहाँ की मेन लैंग्वेज जो है वो है बांग्ला और सिटी है कोलकाता. देन गुजरात. गुजरात स्टेट में नवरात्रि फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. वहाँ पर डांस है, रास गरबा और वहाँ पर बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो है गुजराती एंड द मेन सिटी इज अहमदाबाद. देन असम. असम स्टेट में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है. वहाँ पर जो डांस है वो है बिहू डांस. देन असमीज मेन लैंग्वेज है और गुवाहाटी सिटी है मेन. देन पंजाब. इन पंजाब स्टेट बैसाखी एंड लोहरी आर द मोस्टली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स. मेन फेस्टिवल्स आर बैसाखी एंड लोहरी. देन डांस भांगड़ा एंड गिद्दा. देन मेन लैंग्वेज इज पंजाबी एंड सिटी अमृतसर. Okay, you have to write it in your notebook and textbook also. Question F. Group work. Your teacher will divide
class into groups of 5. Each group can select a state given in the lesson. Make a chart on the state. You can include the following. अब आप स्कूल में तो हो नहीं, ये स्कूल में करने की एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी आप घर में क्या कर सकते हो कि कोई भी एक स्टेट आपको चूज करना है और उस स्टेट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, एक चार्ट बनाना है, जैसे कि उस स्टेट में मोस्टली कौन सा ऑक्यूपेशन है पीपल्स का, देन मोन्यूमेंट्स वहाँ पर कौन से फेमस मोन्यूमेंट्स है, मेनली कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं और किस तरह का ड्रेस वेयर किया जाता है। इस तरह के आप स्टेट्स के नाम लिखकर आगे उनके ऑक्यूपेशंस, देन मोन्यूमेंट्स, मेन क्रॉप्स, ड्रेसेस, इस तरह का चार्ट आप बना सकते हो। देन जी वैल्यू, आवर कंट्री हैज many monuments. Our country has many monuments. What do you do when you visit them? Write yes or no. हमारे कंट्री में बहुत से मॉन्यूमेंट हैं। अगर आप वहाँ पर विजिट करते हो तो आप क्या करोगे? आपको यहाँ पर सिर्फ yes और no आंसर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन है, do you write on the walls? अगर आप किसी मॉन्यूमेंट को विजिट करने के लिए जाओगे तो आप वहाँ पर उसकी जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके ऊपर आप कुछ लिखोगे। अगर आपका आंसर यस है तो आपको यहाँ पर यस लिखना है, अगर आपका आंसर नो है तो नो लिखना है। डू यू टेक फोटोग्राफ्स इन प्लेसेस वेयर इट इज नॉट अलाउड? डू यू टेक फोटोग्राफ्स, आप वहाँ पर फोटोग्राफ्स लोगे कहाँ पर, लेकिन इन प्लेसेस वेयर इट इज नॉट अलाउड, जहाँ पर अलाउड नहीं है वहाँ पर भी आप अपने फोटोज लोगे, पिक्चर्स लोगे। अगर आपका आंसर यस है तो आप यस लिखोगे, अगर आपका आंसर नो है तो आप यहाँ पर नो लिखोगे। देन थर्ड वन, डू यू थ्रो थिंग्स अराउंड? थ्रो थिंग्स यानी कि जो आपके पास कचरा है, रैप होते हैं चॉकलेट्स के, बिस्किट के, कुछ रैपर्स है, कुछ आप जो खा रहे हो इधर उधर फेंक दोगे जो कचरा है। इफ योर आंसर इज यस देन यू कैन राइट हियर, एंड नो ऑल्सो यू कैन राइट हियर। देन फोर्थ वन इज, डू यू मेक नॉइज एंड डिस्टर्ब अदर्स? आप वहाँ पर शोर मचाओगे, चिल्लाओगे, शोर मचाओगे और दूसरे जो लोग हैं वहाँ पर आए हुए विजिटर्स तो उनको डिस्टर्ब करोगे। आपका आंसर आपको यहाँ लिखना है यस और नो। लेट्स सी, इफ यू हैव आंसर नो टू ऑल यू केयर फॉर मोन्यूमेंट्स। अगर आपका आंसर नो है इन 4 क्वेश्चन जो है, इन चारों के लिए आपने अगर नो लिखा है तो इसका मतलब है कि आप जो आपके इंडिया में जो मॉन्यूमेंट्स है उसके लिए आप केयर करते हो, राइट? ओके, लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन आंसर्स आल्सो। यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक. You can write question 1 time and answer 3 times in good handwriting. Okay.